everyone and welcome back to the new video of this channel. So today I will be solving a problem which is sort an array, lead code 912 problem. So let's see the problem sheet. So problem say that we have given an array of integers which name is nums and our task is to sort the array in ascending order, then we have to return it. This is the main line. We can't use the inbuilt function because we have an inbuilt function that is a sort of nums dot begin comma nums dot end. It is a one line code for sorting technique, but we can't use that technique. And we have to sort it in big of n log and time complexity and smallest space that we can use. So we know that we have some sorting techniques like quick sort, merge sort, heap sort, like this. So here the time complexity that we should use is big of n log n. So we know that the big of n log n में अगर मेरे को time complexity use करनी है तो we have a sorting technique which is merge sort. Because merge sort की time complexity big of n log n ही होती है and space complexity big of n होती है. That is a good enough to solve this problem. So first thing that now मेरे को पता है कि यार अब मेरे को मर्ज सॉर्ट यूज करना है. नाउ द सेकंड थिंग इज कि कैसे मर्ज सॉर्ट को यूज करें. ठीक है, उसके लिए ये एक जीएफजी का एडिटोरियल है. इसमें आप देख सकते हो कि यार दिस इज द एरे दैट वी हैव गिवन 38, 27, 43 and 10. The first thing that we can do is we have to do is we have to find the mid and we have to split it because you can see 0 1 2 3 3 by 2 which is 1. So ये मेरा मिड हो गया. ये तो इसको मेरे को स्प्लिट कर देना है. नाउ आफ्टर स्प्लिटिंग इट, नाउ एलिमेंट्स इज 38, 27 and the second vector element is 43 and 10. Then again we have to split it. So आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ, अगर अगेन मेरे को एक स्प्लिट करना है. देखो ये पहले था 38 27, अगेन इसको स्प्लिट कर दिया. 38 अलग हो गया, 27 अलग हो गया, 43 अलग हो गया, 10 अलग हो गया, जब तक कि सारे एलिमेंट्स अलग अलग ना हो जाए. अब मेरे को क्या करना है, ये मेरा एक काम हो गया, स्टेप 2 हो गया. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि यार इन दोनों में से देखना है कि कौन सा मेरे पास छोटा है एलिमेंट. विच एवर एलिमेंट विल बी स्मॉलर दैट विल कम फर्स्ट. सो इसमें से कौन सा इस एलिमेंट छोटा है. 27 है तो 27 पहले आ जाएगा, 38 बाद में आ जाएगा. बिकॉज अब मैं सारे एलिमेंट्स को अलग कर चुका हूँ. तो अब मेरे को अ, सबसे पहले तो एलिमेंट्स को सबको अलग अलग कर लेना है, फिर उसको मर्ज करना है एलिमेंट्स को. अब मेरे को मर्ज करने हैं एलिमेंट्स को, तो 27 पहले आना चाहिए, 38 बाद में आना चाहिए. तो उसके लिए हाँ, ये देख सकते हो कि 27 पहले आ गया, 38 बाद में आ गया. और इसमें भी सेम यही चीज़ हुई कि 10 पहले आ गया, 43 बाद में आ गया. अब मेरे को इन दोनों एरेज को भी मर्ज करना है. इसको एरेज को मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, ith पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, jth पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट छोटा है. नम्स ये इसको मान लो कि इसका नाम है l और इसका नाम है r. सो which element is smaller, you can see here 10 is smaller. So we have to increase the pointer of 10. 10 पहले आ जाएगा और we have to increase the pointer of 10. Now j is at index this and I is at index this. अब मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है कि 27 छोटा है तो 27 आ जाएगा, then 10, then 27, then 38, then 43. Now you can see final array that we will get is 10, 27, 38 and 43. So that is my required answer. So this is a merge sort technique that we can use. You can read about this here from here. So this is the code and you can see this video also. That is a GFG video for understanding the merge sort, that how merge sort works. You can see कि सबसे पहले मैंने एलिमेंट को सबको अलग अलग कर लिया. अब मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, जो भी एलिमेंट छोटा है 27, 38, देन 343, देन 982 एंड 10 अलग हो गया. ठीक है, अब मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा. देन आफ्टर एडिंग दीज एलिमेंट्स दैट विल बी, नाउ माय एरे विल बी लाइक 3 27 38 43 and this will be something like this. You can see this video for understanding purpose or visualization purpose. We have understood that how merge sort works. So एक बार फिर से देख लेते हैं कि merge sort में होता क्या है. बेसिकली मेरे को एरे दिया हुआ है ना. एरे दिया हुआ एक मेरे को दे रखा है 511200. मेरे को एरे दे रखा है
अब एरे को मेरे को क्या है कि सबसे पहले स्प्लिट करते जाना है, ठीक है, जब तक कि सारे एलिमेंट्स मेरे पास अलग अलग ना हो जाए, ठीक है, तोड़ते जाना है बेसिकली, मिड फाइंड करते हुए तोड़ते जाना है। अब मेरे पास सारे एलिमेंट्स अलग हो गए। अब मेरे को देखना है कि यार पहले दो एलिमेंट्स में से कंपेयर कराया कि यार कौन सा एलिमेंट बड़ा है, कौन सा एलिमेंट छोटा है, छोटे वाले एलिमेंट को सबसे पहले डाल देंगे, ठीक है, इसका एक पेयर बन गया। देन अगेन टू एलिमेंट्स को देखा, उसका पेयर बन गया। देन अगेन टू एलिमेंट्स को देखा, उसका पेयर बन गया। फिर से ये जो मेरे पास एरे बना था टू एलिमेंट्स का और एक जो एरे बना था, उन दोनों में मैंने कंपेयर करा है आई और जे पॉइंटर लेके कि यार उन दोनों को मेरे को मर्ज कर दिया। मैं बताऊंगा कैसे करना है वो चीज़, ठीक है। फिर उसमें भी दूसरे वाले पार्ट में भी सेम चीज़ थी और फाइनली मैंने एक एरे बिल्ड कर लिया। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसमें किया क्या था कि मैं सबसे पहले तोड़ता जा रहा हूँ। तो मैं तोड़ूंगा कैसे? मैं ये वाला काम कर देता हूँ और बाकी का फंक्शन कॉल मार दूंगा। मैं इतना काम कर देता हूँ कि मिड फाइंड करके मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा और बाकी का फंक्शन कॉल मार दूंगा। फंक्शन कॉल मारते ही वो रिकर्जर अपने आप ही देख लेगा कि कैसे उसको करना है, ठीक है। फिर फाइनली मेरे को ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब मैं मर्ज करूंगा इनको। तो मर्ज कैसे करूंगा, आइए जे पॉइंटर लेके मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। सो नाउ लेट्स डू द कोड फॉर दिस। सो कोड में क्या करेंगे, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, मान लो मर्ज सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। मर्ज सॉर्ट नाम के फंक्शन में मैं क्या पास कर रहा हूँ, नम्स पास कर रहा हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर रहा हूँ और एंडिंग इंडेक्स पास कर रहा हूँ, नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया एंड मेरे को रिटर्न कर देना है नम्स वाला वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ कि यार मर्ज सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो कैसे बनाना है, मेरे को void मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट नाम के फंक्शन है, मेरे को क्या पास करना है कि नम्स पास करना है। नम्स पास कर दिया मैंने एंड लेफ्ट पास कर दिया एंड इंट राइट पास कर दिया, क्योंकि लेफ्ट क्या है 0, राइट क्या है नम्स डॉट साइज -1, मतलब एंड वाला पॉइंटर, एंड वाला इंडेक्स, सॉरी। अब मेरे को चेक करना है कि यार इफ लेफ्ट लेस देन राइट है, अगर मेरे पास लेफ्ट लेस देन राइट है, सो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं फाइंड करूँगा इंट मिड। मिड कैसे कैसे निकालते हैं, एक तो चीज़ वो है कि लेफ्ट लेफ्ट राइट बाई टू, और दूसरी चीज़ सेम उसी तरीके को लिखने की चीज़ क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट अपॉन टू, ये भी सेम चीज़ ही है, वो उसको लिखते हैं। उसमें कुछ ओवरफ्लो का दिक्कत रहता है, इसमें ओवरफ्लो का दिक्कत नहीं रहता, इसलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने बोला था कि यार मेरे को एलिमेंट्स को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, फंक्शन कॉल मार दूंगा। मर्ज शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट के अंदर मैंने नम्स पास कर दिया, ठीक है। फंक्शन कॉल कैसे आएगी, मेरे को पता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो मेरे को एक तो फंक्शन कॉल जाएगी लेफ्ट पे लेके मिड प्लस वन तक। स्टार्टिंग क्या हुआ, लेफ्ट, स्टार्टिंग तो वही पॉइंट है जीरो इंडेक्स, और एंडिंग क्या हुआ मिड प्लस वन, ये वाला। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया सबसे पहले, हाँ, ये वाले में देखो मिड क्या था, ये था, तो 0 1। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लेफ्ट से लेके मिड प्लस वन तक गया एक, और मिड प्लस वन से लेके एंड तक गया। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं कि यार मैं लेफ्ट से लेके मिड प्लस वन तक के लिए कॉल गई मेरी एक तो, और दूसरा मर्ज शॉर्ट फंक्शन मैंने, मर्ज शॉर्ट कॉल कहाँ से गई, नम्स, नम्स तो सेम रहेगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा, मिड रहा मेरा, और दूसरी एंड तक गई, ठीक है। तो इतना काम मेरा हो चुका है, एंड नहीं है, राइट है, राइट लिखा है ना मैंने, सो राइट तक गई, ठीक है। इतना काम मेरा हो चुका है। अब मेरे को क्या है कि अब मेरे पास वो चीज़ मिल चुकी है कि मैं अब सारे एलिमेंट्स को वाई डूइंग द फंक्शन कॉल, मैं सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर चुका हूँ। नाउ आवर टास्क इज टू मर्ज, मर्ज द एलिमेंट्स। सो मर्ज फंक्शन बना लेते हैं। मर्ज फंक्शन के अंदर हम नम्स पास कर देंगे और क्या पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देंगे, एंडिंग इंडेक्स पास कर देंगे और मिड भी पास कर देते हैं, ठीक है। और मिड पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलो मिड भी पास कर ही देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको ऐसे पास ना करके लेफ्ट और राइट पास कर देता हूँ, लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा मिड, ठीक है। अब मेरे को मर्ज वाला फंक्शन लिखना है, क्योंकि मेरे पास सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो चुके हैं, अब मेरे को मर्ज करने वाले एलिमेंट्स को। सो मेरे को मर्ज वाला फंक्शन, मेरे को मैंने बोला था कि सिंपल होता है। क्या होता है कि मैं दो पॉइंटर लूंगा, चलो देखते हैं साथ के साथ में
p void मर्ज, और इसके अंदर क्या हुआ कि मेरे पास नम्स वाला एरे जाएगा, वेक्टर इंट नम्स, ठीक है, लेफ्ट जाएगा, कॉमा राइट जाएगा, कॉमा मिड जाएगा, ठीक है, मिड भी गया। सो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि एक लेना है इंट, मान लो n1 ले लिया। n1 क्या होता है मेरे पास, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। अब आप एक चीज पूछोगे भैया यार प्लस वन ऐड क्यों कर रहे हो, राइट माइनस एन वन क्या है, साइज है, लेफ्ट वाले का साइज और लेफ्ट वाले का साइज। सो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं राइट वाले, सॉरी ये मिड होना चाहिए था ना, हाँ, क्योंकि मैं लेफ्ट वाले का साइज देख रहा हूँ। तो मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन क्यों कर रहे हो, प्लस वन ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम बेसिकली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट होता है, तो मेरे को प्लस वन ऐड करना पड़ा है, क्योंकि एन वन तो मेरे पास साइज है। तो जीरो वन टू थ्री ये चार एलिमेंट्स हो गए, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ तक गई, थ्री तक गई ना, इसलिए मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इंट एन टू क्या होगा, सेम एन टू वाले का साइज क्या होगा, वो मेरे पास होगा राइट माइनस मिड, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे पास क्या होगा कि मैं दो वेक्टर बना लेता हूँ, मान लो वेक्टर इंट एन नाम का बना दिया, इसका साइज एन वन है, और सेम चीज मैंने वेक्टर इंट आर बना दिया, लेफ्ट और राइट दो वेक्टर बना दिए जिसका साइज एन टू है। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मैंने स्प्लिट कर दिए थे एलिमेंट सारे, तब मेरे को वेक्टर बनाने पड़े थे, ठीक है। दो एलिमेंट्स को अगर मैंने जोड़ा तो उनको वेक्टर के रूप में तो जोड़ा है मैंने, ठीक है। तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे भी कि मैंने वेक्टर बना दिए। तो अब मेरे को क्या करना है कि कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स भी लिख देता हूँ, कॉपी डेटा टू, मान लो टेम्परेली एरे एल एंड आर, एल और आर में मैं डेटा को कॉपी करूंगा। सो फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन एन वन एंड आई प्लस प्लस, एंड मैं क्या करूंगा एल ऑफ आई, एल ऑफ आई किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस आई, ठीक है। लेफ्ट मेरा क्या स्टार्टिंग में जीरो था, तो जीरो प्लस आई, जीरो प्लस जीरो, फिर जीरो प्लस वन, फिर जीरो प्लस टू, ऐसे ये लेफ्ट वाले में कॉपी हो गया। और सेम चीज मैं क्या कर सकता हूँ, राइट वाले के लिए भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे आई था ना, राइट ऑफ आई को क्या कर दूंगा, नम्स ऑफ, इसको हटाया मैंने यहाँ से, मिड प्लस मिड प्लस वन प्लस आई। सो ये मेरा, क्योंकि अब मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर तो लेफ्ट के लिए है, तो लेफ्ट का वेक्टर जीरो से स्टार्ट होगा, तो लेफ्ट प्लस आई, और एक वेक्टर यहाँ से, तो राइट वाला वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, मिड प्लस वन से, तो मिड प्लस वन प्लस आई। सो ये दो वेक्टर मेरे पास बन चुके हैं। अब मैं क्या लूंगा, दो पॉइंटर लूंगा, इंट आई इक्वल टू जीरो, इंट जे इक्वल टू जीरो, एंड इंट के इक्वल टू जीरो। के क्यों ले रहे हैं अब मैं बताता हूँ। देखो एक चीज देखो, वाइल आई इज लेस देन एन वन एंड जे इज लेस देन एन टू, जब तक के लिए मेरे पास दोनों एलिमेंट्स हैं, जब तक के लिए आई लेस देन एन वन है, जे लेस देन एन टू है, मतलब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब मैंने बोला था कि कंपेयर कैसे करना है एलिमेंट्स को, अब मैं बताऊंगा कंपेयर कैसे करना है। मेरे को चेक करना है कि इफ एल ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे, अगर ये चीज है कि अगर लेफ्ट वाले का आइथ पॉइंटर, आइथ वाला इंडेक्स, और राइट वाले का जेथ वाला इंडेक्स इनिशियली दोनों जीरो है, अगर लेफ्ट वाले का छोटा है, तो मेरे को क्या करना है कि यार नम्स ऑफ के, इसलिए मैंने के को एक्चुअली लेफ्ट में होना चाहिए था, जीरो कर दिया मैंने, लेफ्ट में होना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट वाले पॉइंटर को मैं, इनिशियली जीरो था लेफ्ट वाला पॉइंटर, उसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर लूंगा। सो नम्स ऑफ के इक्वल टू ये लेफ्ट वाला एरे, सो एल ऑफ आई, ठीक है। और आइथ वाले पॉइंटर को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। और एल्स केस, एल्स केस में क्या होगा, यहाँ पे केथ वाला पॉइंटर भी इंक्रीज होगा, और मान लो मैंने केथ वाला पॉइंटर भी यहाँ पे भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि केथ वाला पॉइंटर तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि नम्स ऑफ के में डाल दिया है मैंने वो एलिमेंट एल ऑफ आई वाला, सो केथ वाला पॉइंटर भी इंक्रीज होगा ही। अब मेरे को क्या करना है कि सेकंड थिंग इज कि एक चीज देखो,
ith वाला पॉइंटर बढ़ा दिया, kth वाला पॉइंटर, फिर एल्स केस में क्या आएगा, अगर मेरा आर ऑफ जे छोटा हो तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि नम्स ऑफ के इक्वल टू आर ऑफ जे, तो मेरे को जेथ वाला पॉइंटर बढ़ाना पड़ेगा और के भी बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, के भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं दो दो जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी के बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी के बढ़ा रहा हूँ, उससे अच्छा है कि मैं के एक ही जगह बढ़ा दूँ, यहाँ पे बढ़ा दूँ। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब मैंने मान लो कि सेकंड केस क्या आता है, अभी तक तो मेरे पास दोनों एरे के एलिमेंट्स है, अब मान लो आई लेस देन एन वन हो, बस ये वाली केस हो मेरे पास कि आई लेस देन एन वन हो, मतलब मेरे पास जेथ वाला पॉइंटर खत्म हो गया हो, मतलब आइथ वाला पॉइंटर मेरे पास बचा हो, आइथ वाला वेक्टर मेरे पास बचा हो, ये वाला लेफ्ट वाला, क्योंकि आई लेफ्ट वाले पॉइंटर को ट्रिवर्स कर रहा है। मान लो लेफ्ट वाला एरे बड़ा था और राइट वाला छोटा था, अब मेरे पास राइट वाला खत्म हो चुका है, लेफ्ट वाला एलिमेंट बचा हुआ है, तो लेफ्ट वाला एलिमेंट का जो भी एलिमेंट हो उसको पुट कर देंगे, क्योंकि कोई है तो नहीं कंपेयर कराने के लिए, क्योंकि राइट वाला तो बचा नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगा कि सिंपली मैं कह सकता हूँ कि नम्स ऑफ के इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई, एंड आई वाले पॉइंटर को बढ़ा दो और के वाले पॉइंटर को भी बढ़ा दो, और सेम चीज हो जाएगी वाइल जे लेस देन एन टू, मतलब लेफ्ट वाला पॉइंटर नहीं बचा है, लेफ्ट वाला वेक्टर नहीं बचा है मेरे पास, सो उस केस में क्या करूंगा, नम्स ऑफ के इक्वल टू राइट ऑफ जे, एंड जेथ वाला पॉइंटर बढ़ा देंगे और के को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, इसलिए मेरे पास मर्ज वाला फंक्शन बन चुका है। सो नाउ लेट्स रन दिस फंक्शन, रन दिस कोड। सो मर्ज शॉर्ट मर्जर लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, so it is giving me runtime error, so let's see where we have done some mistake। सो लेफ्ट वाला ले लिया मैंने यहाँ पे, राइट वाला ले लिया, और मैं चेक करता जा रहा हूँ। चलो एक बार फिर से फंक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं लेफ्ट से लेके। एक्चुअली ये मिड तक होना चाहिए था ना, और ये मिड प्लस वन से होना चाहिए था। हाँ वही ना फंक्शन पड़ा कि ये तो मिड प्लस वन से होना चाहिए था। हाँ एक बार आप रन करके देखते हैं इसको, अगेन रन टाइम एरर। तो मच और नम्स ऑफ लेफ्ट से लेके मिड तक दे दिया मैंने, मिड प्लस वन से लेके राइट तक दे दिया। ठीक है, और फंक्शन कॉल मार दी। फंक्शन कॉल मारने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि अच्छा आर ऑफ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा ये एन वन तक तो ना जाएगा, एन टू तक जाएगा। अगेन रन कर देते हैं इसको, छोटी छोटी, हाँ अब सही चल रहा है। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, मेरे को करेक्ट करनी पड़ती है। सो नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। नाउ यू कैन सी इट इज वर्किंग परफेक्ट। सो दिस वाज द कोड। इस कोड में मैंने बेसिकली किया क्या कि सारे एलिमेंट्स को पहले मैंने अलग अलग किया है, अलग अलग कर दिया मैंने फंक्शन कॉल के थ्रू। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया मर्ज नाम का, जिससे मेरे पास एलिमेंट्स मर्ज हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। सो उसके लिए मैंने क्या किया कि दो वेक्टर बनाए एन वन और एन टू साइज के। एन वन साइज क्या है, लेफ्ट वाले का साइज, एन टू क्या है, राइट वाले का साइज। ठीक है, और लेफ्ट वाला वेक्टर का साइज क्या है, एन वन, राइट वाला वेक्टर का साइज क्या है, एन टू। और मैंने एलिमेंट्स को पहले कॉपी किया, लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस आई, लेफ्ट वाले का नम्स में, नम्स एरे में जो लेफ्ट वाला पार्ट था उसको लेफ्ट वाले में, एल वाले में कॉपी कर दिया, और नम्स एरे में जो राइट वाला पार्ट था उसको आर वाले वेक्टर में कॉपी कर दिया। देन मैंने पॉइंटर लिए आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट बिकॉज जी लेफ्ट जीरो पे ही था स्टार्टिंग में। अब मैंने ये वाली चेक की कंडीशन की, अगर मेरे पास दोनों पार्ट पड़े हो, एल भी पड़ा हो और आर भी पड़ा हो, तो उसमें एलिमेंट्स को कंपेयर कैसे कराना है, इसमें ये वाली चीज़ तो सिंपल है। अगर मेरे पास आर वाला पार्ट खत्म हो गया हो, आर वाला वेक्टर खत्म हो गया हो, ओनली एल वाला बचा हो, तो डायरेक्ट डेटा को कॉपी कर सकते हैं। और सेम चीज़ लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया और राइट वाला बचा हो, तो डायरेक्ट डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो दिस वाज द सिंपल कोड। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।